Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. So let's start with the set number 38 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is again on games and tournament, which I've taken from previous year's MCATs, and the set says total 5 teams participated in a one-day cricket tournament. They were India, South Africa, New Zealand, Sri Lanka, and Australia. Following are the highlights and scoring rules of the tournament. Each team plays against every other team exactly once. Every match can result in a win for one team or a draw. If the winning team wins by a margin of 100, a minimum 100 run or by 10 wicket, it is said to have won the match comprehensively. Otherwise, it is said to have won the match routinely. In a match that ends in a draw, both the teams are awarded by 1 point. But in a match that ends in a draw, both teams are awarded 1 point each. In a match that does not end in a draw, 3 points are awarded to the winning team and no point is awarded to a losing team. Additional, 2 bonus points are awarded to a winning team that win a match comprehensively. Match between India and Australia resulted in a draw. Only two teams were awarded additional bonus point for winning by a margin of 100 runs or by 10 wickets, and no team won more than one match comprehensive. Final point count of India, South Africa, New Zealand, Sri Lanka, and Australia at the end of the tournament are 12, 7, 6, 5, and 1 respectively. Maximum number of matches drawn by a team was 2. ठीक है. Out of एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. Out of the 5 teams, for how many matches, for how many teams the number of matches won, lost, and drawn can be definitely determined. What was the result of the match between New Zealand and Australia? Which of the following matches ended in a draw? Which of the following statement are correct? सो क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि यार यूनिक बनेगा. सो अ राउंड रॉबिन टेबल की प्रॉब्लम इज देयर एंड टेबल बना लिया इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, और इनके बीच में विन लूज आइडेंटिफाई करना है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अब प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता है? विन हो सकता था या लूज हो सकता है. अगर जीत जाओगे तो +3 मिलेगा, हार जाएगी टीम तो 0 मिलेगा, ड्रॉ करा ले जाओगे तो +1 मिलेगा. एंड देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव विन. कॉम्प्रिहेंसिव विन पे क्या मिलने वाला है? +2 का बोनस. ठीक है. अगर आपका विन 100 रन से ज्यादा है या 10 विकेट से ज्यादा है तो आपकी टीम कॉम्प्रिहेंसिव विन मिल जाएगा आपको, और उसके में आपको +2 मिल जाएगा. अब इसके अंदर ये कह दिया कि पांचों में से 2 टीम थी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव विन लेती थी. ऑल्सो दोस टीम हैड ओनली वन मैच एज अ कॉम्प्रिहेंसिव विन. वो एक से ज्यादा नहीं कर पाती थी. यानी कि टोटल कितने मैचेस होने वाले? 5 into 4/2, यानी कि ये टोटल 10 मैच होने वाले थे. उस 10 में से 2 मैच ऐसे हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव विन लेने वाले. बाकी सारे जितने मैचेस वो रूटीन विन पे जाने वाले हैं. ठीक है. अब अपने पास कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, उसकी हेल्प लेके लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट. ईच टीम प्लेड एवरी मैच एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस. ठीक है जी. एवरी मैच, वो मैंने पॉइंट को नोट डाउन कर लिया है. इन अ मैच दैट एंड इन अ ड्रॉ बोथ टीम्स आर अवॉर्डेड विद 1 पॉइंट. नोट कर लिया. इन अ मैच दैट डज नॉट एंडेड इन अ ड्रॉ कर लिया. एडिशनल 2 बोनस पॉइंट देने वाले. ये सब चीजें तो मैंने लिख ली. पॉइंट नंबर 5, मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिजल्टेड इन अ ड्रॉ. चलो ये यूनिक पॉइंट अपने को मिलना शुरू हो गया. ड्रॉ है तो भाई साहब +1 और +1 दे देते हैं. ठीक है. फिर लिखा हुआ ओनली 2 टीम्स. ये मैंने अपने दिमाग में नोट कर रखा है, मैं अभी मैंने बोला भी था ये. फाइनल पॉइंट count of India, South Africa, New Zealand, Sri Lanka and Australia at the end of the tournament are 12, 7, 6, 5 and 1 respectively. अच्छा, 12, 7, 6, 5 और 1. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉन बाय टीम वाज 2. मैक्सिमम जो है कोई एक टीम 2 मैच ड्रॉ करा सकती है. अब जब भी तुम्हें ऐसे सेट मिले तो क्या करना चाहिए? हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे गेम को चलाना चाहिए. गेम चलाना मतलब ऐसे यहाँ पे जो क्रैक होने वाला है वो 12 और 1 की हेल्प से होना चाहिए. ठीक है. ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है. तो 1 कैसे मिलेगा? 1 तो ऑब्वियसली मिल रखा है, तो यानी कि ये सब बाकी तो ये 0 ही इन्होंने लिया होगा. 0 कैसे लिया होगा? ये सब हार गए होंगे. ठीक है. अगर बाकी सब हार गए हैं तो यानी कि इनके अपोनेंट सब जीत गए. ऐसा. ठीक. अगर अपोनेंट्स जीते हुए हैं तो वो क्या जीते होंगे? वो +3 भी आ सकता है, वो +5 भी आ सकता है. तो इट कुड बी एनीथिंग. अपने को तो पता नहीं है वो क्या आने वाला है. ठीक है. अपने को बस ये पता है कि विन आने वाला ये चीज है. अच्छा, दूसरा क्या चेक करना चाहिए? सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला कौन है? यहाँ पे इंडिया जो सबसे ज्यादा स्कोर करी है, और कितना करी है? 12 कर रही है. 12 में से 1 ऑलरेडी दिया हुआ है. रिमेनिंग 11 कहाँ से मिला होगा? रिमेनिंग 11 कहाँ से आएगा अगर ये सोचा जाए? 11 लाने के लिए मेरे को क्या बन सकता है? 5, 5 और विन 1. बेसिकली 2 विन और 1 ड्रॉ. बट ये जो 2 विन है ना, ये 2 कॉम्प्रिहेंसिव विन लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 में लिखा था कि भाई कोई भी जो टीम कॉम्प्रिहेंसिव विन ले रही वो एक से ज्यादा मैच नहीं ले सकती. इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हम 5
3 और 3 लेना पड़ेगा, यानी कि तीनों मैच अपने को विन तो देना ही पड़ेगा। तीनों अगर विन है यानी कि इनके अपोनेंट लूज कर गए होंगे। अपोनेंट कितना पाएंगे? 0 0 और 0। और ये भाई साहब कितना पाएंगे नहीं पता, ये पता है कि ये 5 3 3 में से कुछ तो पाएंगे। अब वो 5 3 3 किस ऑर्डर में कहां पे जाएगा नहीं पता, ठीक है। इसके अलावा और क्या करा जाए? इसके अलावा तो यार इसके इंडिया के बारे में तो हम बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे। साउथ अफ्रीका के बारे में देखते हैं, क्योंकि अब वही चीज है जो अपने पास मिली हुई। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। साउथ अफ्रीका के बारे में ये पता है कि 7 स्कोर करता है, न्यूजीलैंड 6 करता है और श्रीलंका 5 करता है। अपने को एक टीम और आइडेंटिफाई करनी जिसने कॉम्प्रिहेंसिव विन ली हो, ठीक है। वो टीम कौन सी हो सकती है? अब क्या वो टीम साउथ अफ्रीका हो सकती है? अगर वो टीम साउथ अफ्रीका है तो 7 का जो स्कोर है वो कैसे हो सकता है? 5 1 और 1। अगर वो टीम साउथ अफ्रीका नहीं है तो 3 3 और 1 होना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज 1, एक विन तो है ना, तो 3 3 और 1 ही बन सकता है। और वैसे ही बन सकता है तीनों के मैच में, यानी कि यहाँ पे लूज कुछ भी नहीं करेगा साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के अपोनेंट या तो मतलब हार ही रहे हैं या तो ड्रॉ करा ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली न्यूजीलैंड के लिए चेक करा जाए, न्यूजीलैंड का जो स्कोर है वो कितना है? 6 है। तो क्या न्यूजीलैंड कॉम्प्रिहेंसिव विन ले सकती है? उस केस में न्यूजीलैंड नीड टू हैव 5 1 एंड 0। अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव विन नहीं लेती है तो ये क्या होना पड़ेगा? 3 + 3 + 0 इन सम ऑर्डर, ठीक है जी, ये भी लिख लिया। ऐसे ही श्रीलंका के बारे में भी लिख लिया जाए। श्रीलंका के बारे में क्या पता है? श्रीलंका भाई साहब कितना पाती है? 5 पाती है। तो 5 कैसे आएगा? कॉम्प्रिहेंसिव विन लेता है तो 3 + 1 1 1 आता है, या सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव विन अगर लेता है तो 5 + 0 + 0 आता है, और अगर कॉम्प्रिहेंसिव विन नहीं लेता है तो 3 + 1 + 1 आता है, ठीक है। बेसिकली देखो ऐसे सेट को ना क्रैक करने का दो तरीका है। एक तो हिट एंड ट्रायल करके केसेस निकालो, बार बार वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव विन को लगाओ और रब करो, कॉम्प्रिहेंसिव विन लगा लगा के चेक करो। दूसरा, इनके स्कोर को ना पूरा क्रंच करके अगल बगल लिखो और तुमको चीजें दिख जाएंगी। कैसे दिखेंगी आओ बताते हैं। जैसे मान लो मैंने श्रीलंका का कॉम्प्रिहेंसिव विन ले लिया, ठीक है। अगर श्रीलंका का कॉम्प्रिहेंसिव विन ले लिया तो अपने को क्या पता है? साउथ अफ्रीका का एक ड्रॉ देना है, ठीक है। तो वो एक ड्रॉ किसके साथ होगा? बिकॉज अगर मैं श्रीलंका का कॉम्प्रिहेंसिव विन लेता हूं यानी कि मेरे को ये केस लेना पड़ेगा और ये केस लेना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हो? यानी कि बाकी दो टीम का मैं कॉम्प्रिहेंसिव विन नहीं ले सकता हूं। उस केस में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यार? साउथ अफ्रीका का एक ड्रॉ हो रहा है, किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं बन पाएगा यार। देखो ना यहाँ पे न्यूजीलैंड का उस केस में स्कोर कितना जा रहा है? 3 3 0 वाला। इसका स्कोर जा रहा है 3 3 1 वाला। ये 1 का जो है ये तो यार प्रॉब्लम बन गया, यानी कि ये 1 कहीं तो एकोमोडेट होना चाहिए था, वो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है और यहाँ तो कतई नहीं हो रहा। बाय दैट लॉजिक मैंने क्या देखा यार? श्रीलंका को तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव विन नहीं दे सकता, तो श्रीलंका को क्या दे सकता हूँ? +3 +1 और +1, यानी कि ये ड्रॉ आना चाहिए था, ये भी ड्रॉ आना चाहिए था, ठीक है। अगर ये ड्रॉ है तो इनके अपोनेंट्स भी ड्रॉ ले लेंगे ना, ये भी ड्रॉ आ गया और ये भी ड्रॉ आ गया। अच्छा, यानी कि अब ये वाला केस तो अपना हमने खत्म कर लिया, ठीक। अच्छा, क्या मैं वो कॉम्प्रिहेंसिव विन न्यूजीलैंड को दे सकता हूँ? पॉसिबल है, पॉसिबल तो है यार। 5 1 0 दे दें तो बन सकता है। या क्या मैं वो कॉम्प्रिहेंसिव विन साउथ अफ्रीका को दे सकता हूँ? अब प्रॉब्लम क्या है साउथ अफ्रीका के साथ? ये 5 1 1 देना पड़ेगा। दिक्कत क्या है? अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव विन साउथ अफ्रीका को देता हूँ, समझना, अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव विन साउथ अफ्रीका को देता हूँ तो मेरे को 5 1 1 चाहिए। 5 1 1 के लिए मेरे को 2 ड्रॉ चाहिए, जिसमें से एक ड्रॉ तो श्रीलंका वाला है, दूसरा ड्रॉ मेरे को न्यूजीलैंड वाला देना पड़ेगा। एंड सिंस आई हैव गिवन कॉम्प्रिहेंसिव विन टू साउथ अफ्रीका, सो आई नीड टू हैव न्यूजीलैंड का ये वाला स्कोर 3 3 0, और यहाँ पे तो यार न्यूजीलैंड किसी से ड्रॉ ही नहीं करा रहा है। पॉइंट समझ लो? ये 5 1 1 वाला लोचा हो रहा है। ये 1 1 वाला एक 1 तो तुम यहाँ पे अकोमोडेट कर लोगे, दूसरा 1 कहाँ पे जाएगा? बिकॉज यहाँ पे तो 1 आ ही नहीं रहा है। बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा? ये भी नहीं होने वाला। चलो जी, यानी कि यहाँ से भी कॉम्प्रिहेंसिव विन गया। इसका क्या होने वाला है? 3 3 1 होने वाला है, जिसमें से एक 3 ये मिला हुआ है, एक 3 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। और एक 1 तो अपने को मिल रखा था क्योंकि मैंने श्रीलंका वाले से लिख लिया था। अगर ये विन इधर है तो यहाँ पे क्या आएगा? लूज आएगा, ठीक। यानी कि ये क्या बनना चाहिए? यही केस बनना चाहिए जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव विन इनको मैं दे दूंगा, ठीक है। सो हिट एंड ट्रायल से ही करा ये, मतलब अगर देखो तो ये हिट एंड ट्रायल ही तो है जिसमें मैंने नंबर को क्रंच कर लिया, बट हाँ, नंबर लिखने की वजह से आई एम एबल टू कनेक्ट दोज डॉट इजीली। और यही चीज अब आप रब कर करके कर रहे हो तो काफी कंफ्यूजन में रहते हो। तो ये एक अप्रोच है जो कि मैं यूज करता हूँ फॉर सॉल्विंग दीज सॉर्ट ऑफ सेट। अब इसमें अगर ध्यान दो तो साउथ अफ्रीका का सब पता चल गया, न्यूजीलैंड का सब पता चल गया, श्रीलंका का सब पता, ऑस्ट्रेलिया का सब पता है।
इंडिया का ये पता है कि कितने मैचेस जीता है, ड्रॉ करा है, बट ये नहीं पता कि जो जीता है उसमें से कॉम्प्रीहेंसिव विन कौन सी है। ठीक है, चलो लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछा हुआ है, क्या उसमें कुछ ऐसा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आउट ऑफ 5 टीम्स फॉर हाउ मेनी टीम द नंबर ऑफ मैचेस वन लॉस एंड ड्रॉन कैन बी डिटरमाइन। यार ये तो पांचों टीम का बता पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि इंडिया ने कितने जीते, इंडिया ने 3 जीता 1 ड्रॉ, यूनिकली बता पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका कितना जीता है, न्यूजीलैंड कितना जीता है, श्रीलंका कितना जीता, ऑस्ट्रेलिया कितना जीता, ये तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा कि किस टीम ने कॉम्प्रिहेंसिव विन करी, कितना करी, वो चीज सबका नहीं पता चला, बिकॉज क्वेश्चन में तो देखो क्लियरली जो पूछा है मैं उसके हिसाब से तो 5 आंसर कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कहां गया, ये रहा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कितना है, न्यूजीलैंड जीती और कॉम्प्रिहेंसिव विन जीती है, ठीक है, न्यूजीलैंड जीती और कॉम्प्रिहेंसिव विन जीती है। विच आर द फॉलोइंग मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, ड्रॉ कौन करा रहा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, ठीक है, ड्रॉ है, यानी कि ये तो है। न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, ये भी ड्रॉ है, चलो ये भी टिक करते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, यार ये ड्रॉ तो नहीं है, ये तो साउथ अफ्रीका जीत गई थी, यानी कि बोथ 1 and 2 होना चाहिए, 1 and 2 ऐसे हैं जो कि ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। Which of the following statement is or are correct? At least one match played by each team ended in a draw. यार ये शायद ट्रू है, इंडिया का एक ड्रॉ दिख रहा है, इनका एक ड्रॉ दिख रहा है, श्रीलंका का भी दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी दिख रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो परफेक्टली ट्रू है। When lose draw table for exactly two teams look similar, that is to say they won equal number, मतलब lost and drew equal number of matches। अच्छा ऐसा है क्या, इनका 3-1 और 1 ड्रॉ था, इनका कितना था, 3 लूज और 1 ड्रॉ, इन्हीं में से किसी का अगर होना चाहिए, अगर होता है तो इनका कितना है, 1 लूज 2 विन और 1 ड्रॉ, ठीक है, इनका कितना है, 2 लूज 1 ड्रॉ और 1 विन, और इनका कितना है, 1 लूज 2 ड्रॉ और 1 विन, ठीक है। सो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, सॉरी नहीं किसी का भी नहीं है, साउथ अफ्रीका का भी नहीं है, बिकॉज इनका 2 विन था, इनका 2 ड्रॉ है, तो यानी कि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यानी कि क्या पूछा था अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज करेक्ट। So that's it from this particular set, and keep practicing. Also, Happy Guru Nanak Jayanti. I pray to the God कि जो लास्ट का 7 days आपके हैं वो काफ़ी अच्छे जाएं, काफ़ी आप एनर्जी के साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करें, एंड यू डू बेस्ट इन योर कैट एग्जाम। एंड आई यूजुअली स्टार्ट माई डे विद अ कीर्तन बाय दिलजीत, एंड इन दैट देयर इज अ लाइन जिसमें वो कहता है कि तमाशा तगदा तगदा तू तमाशा बनना जावी वे, ऐस दुनिया ते हमेशा कुछ नहीं रहना, विच मीन्स कि हर चीज़ कांस्टेंट नहीं रहने वाली। सो अगर आपका चीज़ अच्छी जा रही हैं तो चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, और अगर चीज़ें खराब जा रही हैं तो ऑब्वियसली ये हमेशा नहीं रहने वाली हैं, चीज़ें इंप्रूव होंगी। एंड विद दैट आई क्लोज दिस सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।